So, very good morning, boys and girls. Let's start our lecture of secretarial practice. Secretarial practice का हमारा lecture जो है वो चल रहा है, जहाँ पर हम मीटिंग ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं. कंपनी मीटिंग 1. कंपनी मीटिंग 1 के हमारे पहले पार्ट के अंदर वी आर लर्निंग अबाउट व्हाट आर द वैलिड पॉइंट्स रिगार्डिंग कंडक्टिंग अ मीटिंग, राइट. जहाँ पे हमने अभी तक बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात की है. different points we have talked about and different things we have completed. We have completed what we have completed. How is a valid meeting being called, right? What is the quorum for the meeting? What is then notice? How is the notice being given, right? Again, we have also seen what are the different types of motions we have, right? And what is point of order? Everything we have seen. Yes, before going ahead with things, any doubt in the particular things which we have seen till now? अभी तक जो कुछ भी जितना हमने देखा है इसमें किसी कोई डाउट है? Yes, does anyone have any sort of doubt? Yes or no? Shall I go ahead with things? Shall I go ahead with things? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन के साथ with the next point, that is voting. Now what we have seen कि there are different aspects which have been talked and discussed at the meeting. मीटिंग के अंदर बहुत से पहलू है जिनके ऊपर बातें होती है और जिसके ऊपर चर्चाएं होती है. And all the subjects which have been talked about are part and parcel of whatever is mentioned in the agenda. जो चीज एजेंडा में है उसी के ऊपर चर्चाएं और डिस्कशन होनी है. जो चीज आपके एजेंडा में नहीं है उसके ऊपर चर्चाएं नहीं होगी. हाँ या ना? राइट. ओनली दोज थिंग्स विल बी टॉक्ड and be put to voting at the meeting only which are part and parcel of the agenda. हाँ या ना? Yes or no? Right. So after discussing on all aspect of a point of a agenda, what is the final thing is required is taking a decision. Final चीज में क्या लगता है? निर्णय लेना. Yes. What is the final point required? The final point required is to take the decision. Yes or no? हाँ या ना? Right. Now how we go on a decision in a meeting? Let's say we have a point of expansion. We have a point of expansion in the meeting as per the agenda. We have had enough discussion. हम लोगों ने एक अच्छा खासा उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया हर किसी ने. After completion of all the discussion, now we want to take a final call on the expansion decision. So for taking the final call, what would be required is that particular resolution or that particular point or that particular part of the agenda has to be put to voting. Has to be put to voting. And you know that passing of the special resolution is of two types. Passing of the resolution is by two types. One is by ordinary resolution and another is by special resolution. So Gaurav, whenever we pass a special resolution, how much voting is required for special resolution? कितनी वोटिंग लगती है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए? 75. More than 75% of voting is required for passing a special resolution, right? अनु बेबी, अब तुम बताओ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितना वोटिंग लगता है? नॉर्मल मेजोरिटी कितनी होती है बेटा? More than 50%, not 50%. If it is 50%, then it will be a tie. आधे इधर आधे इधर. So रेजोल्यूशन पास होगा क्या? नहीं, राइट. सो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए हमें क्या लगता है? मोर देन 50%. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विल बी पास्ड इफ द वोटिंग इज मोर देन 50% and special resolution is passed when the voting is more than 75%, right? So let's start the discussion of the concept voting. To vote means to exercise an opinion in a formal way. What is your final opinion, or what is your final call, or what is your final decision has to be expressed, and that can be expressed with the help of voting. That can be expressed with the help of voting. कंपनी को एक्सपांशन करना है. कंपनी पहले फार्मास्यूटिकल में थी, कंपनी पहले मेडिसिन बनाती थी, अब कंपनी फर्टिलाइजर बनाना चाहती है. Who are the owners? We all members are the owners of the company. We want to express our opinion whether we are going with the decision, whether we favor the decision, or whether we disagree with the decision. Are we with the decision, or are we against the decision? Has to be expressed, and that expression in the meeting can be done with the help of voting, right? आप इस निर्णय के साथ हो या निर्णय के खिलाफ हो, ये एक्सप्रेस करना है. और मीटिंग में एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, जहाँ पे यू कैन शो कि आप साथ में हो या उसके विरुद्ध हो,
तो वो बताया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वोटिंग. यस और नो? आफ्टर डिस्कशन ऑन द मोशन in a meeting, it is put to vote for knowing the opinion of the members. Voting is necessary to ensure the sense or the trend of the meeting. Each shareholder has a right to vote on each motion in lawful manner. Each shareholder has a right to vote each motion in a lawful manner. So there are different types in which we can have the voting. We can have voting by show of hands. Show of hands, right? We have voting by show of hands. We can also have voting by poll. Poll चिट्ठी बना के yes no, हाँ उस हिसाब से. तो इसे हम कहेंगे वोटिंग बाय पोल, राइट. इस तरह से अलग अलग तरीके से हम हमारा जो ओपिनियन है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोटिंग, राइट. चलिए, मेथड्स ऑफ वोटिंग. सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वोटिंग. फर्स्ट, वोटिंग बाय वॉइस. इसका बहुत भारी एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो पार्लियामेंट में देखो, देखेंगे कभी मोदी 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 जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, जोर जोर से, है ना. नॉर्मली क्या करते हैं, ये जो मेथड है ना, इसको बहुत टैक्टफुली यूज किया जा सकता है. अगर मान लो कुछ सेक्शन ऑफ लोगों को लगता है कि हमें किसी रेजोल्यूशन के ऊपर, अभी नॉर्मली बॉयज और गर्ल्स है, अभी जैसे हाफ गर्ल्स या हाफ बॉयज है, अगर हम वोटिंग बाय वॉइस लेंगे कि जो लाउडली चेयरमैन को सुनाई देता है उसके कान पे लगता है, अगर उसको हाँ सुनाई दे रहा है तो हाँ, चेयरमैन बोलता है उसके कान पे अगर जोर से आवाज अगर ना का आ रहा है तो ना. इस हिसाब से भी वोटिंग होती है. इसे हम कहते हैं वोटिंग बाय वॉइस. अब मान लो ये मीटिंग है, मीटिंग के अंदर गर्ल्स है बॉयज है, बड़े ऑब्वियस चिल्लाने के मामले में लड़के तो पहले है कि लड़कियां है. कौन है भाई? लगता है ऐसा अपने को बॉयज है, लेकिन बॉयज के बेचारों का आवाज नहीं निकलता, गर्ल्स के मैं ज्यादा चलते रहता. वो हमारे 12th क्लास में खुशी है तापड़िया, उसकी हंसी सुन लिए तो बच्चा 4 दिन सोता ही नहीं. ये क्या हंसी है. और तुम्हारे 12th के सीनियर तो एक्सपर्ट है एक से एक हंसने में. तो लेट्स से हमारी मीटिंग चल रही है and I say we put a resolution for expansion of fertilizer and the voting has to be put by voice. Raise your voice. हमारे लड़के आधे तो शर्मा रहे, लाजाइले, कराइले, भाले जैसे तो कुछ बोल ही नहीं रहे. विष्णु नको सर, चल रहा है हमारा विष्णु का, ठीक है, नको सर. आधे लोग तो खाली चुप है बेचारे, देख रहे. लेकिन गर्ल्स का ऐसा नहीं है. गर्ल्स की वी शुड बी यूनाइट. गर्ल्स, हमें वोटिंग करना है. आजकल बहुत यूनिटी है सब व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर. आई हैव अ सर्विलेंस ऑन एवरीथिंग. हर जगह पे जासूस है मेरे. तो कोई भी ग्रुप बनाओ तो कहीं की खबर मुझे कहीं पर भी आ जाती है. अच्छा, क्या था कल डिस्कशन पार्ट? व्हाट वाज यस्टरडेज डिस्कशन रिया? हाँ, क्या था डिस्कशन सुहास? हाँ, वॉइस नहीं, कल का डिस्कशन आप भी का नहीं बोल रहा, व्हाट्सएप का डिस्कशन बोल रहा. ऑन एलसेस ग्रुप एसपीसी गर्ल्स. क्या था डिस्कशन देवकते? मेरे को जैसे याद है शायद कुछ मैच का पोस्टपोनमेंट का था शायद. सपोर्ट गाइस. ओह, आई एम स्मार्ट, आई एम वेरी स्मार्ट, आई कीप आई ऑन एवरीथिंग. और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं कहां से कैसे नजर रख रहा हूं. तो बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी हर एक्टिविटी यहां ट्रैक होती है. एसपीसी में तुम्हारी हर एक्टिविटी यहां ट्रैक होती है. तो सपोर्ट करे, हो गया सपोर्ट हो, तो ये पता भी नहीं चलेगा मैं कहां से क्या पढ़ रहा हूं, कैसे पढ़ रहा हूं. खाली सोचते रहो, कीप इमेजिनिंग, राइट. क्योंकि बता दूंगा तो फिर मजा क्या है, ठीक है. भेदी कौन है ढूंढते रहो, क्या पता भेदी भी नहीं है तो. सो वोटिंग बाय वॉइस की हम बात कर रहे हैं. लेट्स से हमारे क्लास की चर्चा कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मैथ्स के पेपर के पोस्टपोनमेंट की. बड़े पे से वन वॉइस आएगा यस सर, उसमें तो कोई नो बोलने से नहीं रहा, राइट. एक सिंगल वॉइस आएगा यस सर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अभी कोई ऐसी चीज है जिसमें 50-50 होना है, जहां पे गर्ल्स को लग रहा है कि ये चीज होनी चाहिए, बॉयज को लग रहा है कि ये चीज ना हो. एंड आई हैव पुट दैट वोटिंग बाय वॉइस. सो whosoever will be louder and that comes to the ears of the chairman will be considered. सर इसमें कैसा डिसीजन लेंगे, अब वो चेयरमैन के ऊपर है. लेट्स से द गर्ल्स हैव अ लार्जर वॉइस. बोलो जोर से यस, बोलो ना.
ओके चलो अभी एक ट्रायल लेते हैं अपन, एक ट्रायल लेते हैं, लेट्स हैव अ ट्रायल, राइट, लेट्स हैव अ ट्रायल। ऐसे कि आई एम ट्राइंग टू पुट अ रेजोल्यूशन फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ मैथ्स एग्जाम एंड गर्ल्स आर गोइंग टू सपोर्ट दिस रेजोल्यूशन एंड बॉयज आर अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, ओके राइट। अभी मुझे एक साथ चिल्ला के बताओ कैसे वॉइस क्या मेरे पे आ रहा है, यस ज्यादा आ रहा है, नो आ रहा है, यस 1 2 3 गो। अभी क्या हो रहा है, तुम लोगों ने यस बोला, इन लोगों ने नो बोला, इनकी आवाज ज्यादा पावर से आई, तो वर्ड वुड भी दोनों की ये सब चिल्लाने के चक्कर में ज्यादा किसका आवाज आ रहा है, नो का साउंड ज्यादा बन रहा है। द रेजोल्यूशन इज पास्ड विद अ नो, दिस इज वोटिंग बाय वॉइस, दिस इज क्या बोले बेटा, सो दिस इज यस एंड नो। वो तो सिर्फ डेमो था बेटा, असलियत भावनाओं में मत बहो, मुद्दा समझो, मुद्दा, राइट। सब पॉइंट क्या था अब समझ में आया, ये लिया हमने वोटिंग ऑफ वॉइस, हमने डेमो ले लिया, प्रैक्टिकल डेमो। अब इस यस और नो के चक्कर में सब जन नो बोल रहे थे क्या, नहीं, आधे लोग यस बोल रहे थे, आधे लोग नो बोल रहे थे, लेकिन वॉल्यूम के वॉइस स्केल में ज्यादा आवाज किसका आ रहा था, यस यस, नो तो क्या तुम, नो थे सॉरी, ज्यादा आवाज किसका आ रहा था, नो का। सो एज पर वोटिंग बाय वॉइस द रेजोल्यूशन इज पास्ड विद नो इवन इफ सम पीपल से यस। नॉर्मली हम जब पार्लियामेंट में देखते हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उसके ऊपर वोटिंग लेना चाहते हैं लोकसभा का, लेट्स से इन द पार्लियामेंट इफ मोदी जी इज पुटिंग समथिंग सम मोशन टू बी वोटेड बाय द मेंबर्स, और उनको लगता है कि उनके खुद के जो बीजेपी के जो एमपीज है या उनके जो एनडीए के जो सहायक दल के जो मेंबर्स है वो कम संख्या में आए हैं और उनकी वोटिंग वहां पे कम हो सकती है अगर पूल से लिए, रेज ऑफ हैंड से लिए, तो ऐसे सिनारियो में वो क्या करते, गेम वोटिंग बाय वॉइस लेते और फिर सबको बोलते खाना खा के आना, आइडाई जोरदार, मजाक कर रहा हूं। नॉर्मली जब उनको लगता है कि एक दो वोटिंग से, बाय शो ऑफ हैंड से या पोल से हम हार सकते हैं, 2 4 5 वोटिंग से, तो ऐसे केस में वो क्या करते, जानबूझ के वोटिंग बाय वॉइस लाते हैं, और वोटिंग बाय वॉइस लाया तो जिसका आवाज बढ़ा उसका रेजोल्यूशन पास। जैसे अभी के सिचुएशन में लेट्स से गर्ल्स की संख्या बॉयज से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वॉइस किसका ज्यादा आ रहा है, बॉयज का, सो इट विल बी पास बाय नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इज वोटिंग बाय वॉइस क्लियर, हाँ या ना, राइट। चलिए, under this method the members are required to say yes if they are in favor of the motion and no if they are against the motion. Decision is taken on the basis of the volume of the voice, and in our particular resolution the volume of voice of no was more than the volume of yes, right. This methodology is exercised rarely. The volume of the voice does not give the clear idea about the majority of the votes. Now this is exercised rarely, बहुत रेयर हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब कुछ ऐसे खेल खेलने हो जहाँ पे मोदी जी को कुछ ऐसा करना हो या मीटिंग में चेयरमैन को कुछ ऐसी करवानी हो, खिचड़ी पकानी हो, तो ऐसे किस केस में हम वोटिंग बाय वॉइस ये जो है लेते हैं। लेकिन ये मेथड है तो हमें डिस्कस करना है। पहला पॉइंट क्लियर है, किसी को भी डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट इज वोटिंग बाय डिवीजन। अगला पॉइंट क्या है? वोटिंग बाय डिवीजन। लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट द टेक्स्ट, देन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। Under this method, members are divided into 2 groups. Members in favor and those against the matter are asked to go in different rooms. Then the trend of the meeting is ensured by counting and chairman declares the result. Right? अब जैसे अभी यस क्या है और नो क्या है, हमारे पास 2 क्लास है, एक ये वाला क्लास, एक जो नया क्लास बना है वो क्लास, राइट। ये क्लास, एक दूसरा वाला क्लास, राइट। तो लेट्स से मैंने कहा है कि जो लोग इसके फेवर में हैं, जैसे नो वाले जितने हैं वो क्लास में चले जाओ और यस वाले वो यहीं रह जाओ। तो सारे बॉयज किधर जाएंगे? वो वाले क्लास में जाएंगे, गर्ल्स सारे यहीं रह जाएंगे। फिर चेयरमैन दोनों तरफ की वोटिंग लेगा, फिर काउंटिंग करेगा और उसके बाद जो है निर्णय सुनाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर लेट्स से कोई उधर जाता है नो में, उधर जाके यस की वोटिंग करता तो चलेगा। समझ में आ रहा है? रहता ना घर का बेदी लंका ढाए, है ना, अपने अपने में रहते कोई, अब ढूंढो तुम कौन है बेदी। सो दिस इज वोटिंग बाय ग्रुप, इज दिस ओके? इसमें कुछ भी नहीं, हमने क्या किया, फेवर में जो उनको अलग किया, अनफेवर में उसको अलग किया। नॉर्मली दोनों को अलग रूम में बैठाया जाता है और पूरी वोटिंग चेयरमैन नॉर्मल प्रोसेस में लेता है। नेक्स्ट इज वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट इज वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। यू जस्ट हैव टू रेज द हैंड। सो आई जस्ट आस्क, जो लोग फेवर में है वो हाथ ऊपर करो, जो फेवर में नहीं है वो हाथ ऊपर मत करो, राइट। पहले जो ऐसा नहीं होता, सॉरी, पहले जो फेवर में रहेंगे पहले उनको पूछूंगा, दोज हु फेवर द डिसीजन ऑफ पोस्टपोनिंग द एग्जाम, यू जस्ट रेज योर हैंड। सो ऑल गर्ल्स शुड रेज द हैंड। चलो रेज योर हैंड्स,
राइट? सभी गर्ल्स हाथ रेज करो, एवरीवन। चलो, so you are in favor of the decision of postponement of exam, so all of you have just raised your hand. I just have to count the raised hands, and this is the number of vote in favor of yes. So when I have to go for no, all boys have to raise the hand. Yes, raise your hand then, right? When you raise the hand, this is being counted and it is being put to vote. By raise of hands, the majority says no, and the motion will go by no, not by yes. Is this okay? वोटिंग बाय डिवीजन और शो ऑफ हैंड्स में फर्क ये है कि यहाँ दो अलग अलग करना नहीं, ग्रुप नहीं बनाना है अपने को, एक जगह ही रखना है और एक जगह रख के बाद में वोटिंग बाय हैंड चलना है। ग्रुप के अंदर अपन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, अलग, इसको अलग कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं जो यस वाले हैं वो उधर बैठ जाओ, नो वाले इधर बैठ जाओ। अगर आपके दो हॉल है, दो में से यस वाले को दूसरे हॉल में चल जाओ, नो वाले ये हॉल में रह जाओ। तो ये सब शो ऑफ हैंड्स में नहीं करते ना, शो ऑफ हैंड्स में सभी एक साथ ही बैठ रहे, सिर्फ हाथ ऊपर करना है जब आपको यस है, अगर हाथ ऊपर करना है अगर आपका नो है, राइट? थोड़ा सा नॉमिनल जो है वो डिफरेंस है। समझ में आया? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, यस और नो? दिस मेथड इज यूज्ड इन द जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। आफ्टर डिस्कशन ऑन द मोशन, द चेयरमैन रिक्वेस्ट द मेंबर्स टू रेज देयर हैंड्स इन फेवर और अगेंस्ट द मोशन। द चेयरमैन डिक्लेयर्स द रिजल्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ हैंड्स इन फेवर और अगेंस्ट द प्रपोजल, इन फेवर और अगेंस्ट द प्रपोजल। नाउ वोटिंग बाय बैलेट, वोटिंग बाय बैलेट, बैलेट बॉक्स जो पुराने जमाने की इलेक्शन में देखा जाता था। कितने लोग पुराने पिक्चर देखते हैं? ओल्ड मूवीज, ओल्ड मूवीज बोलते मैं दिलीप कुमार के जमाने के नहीं बोल रहा, ओल्ड मूवीज में गोविंदा जैसी भी मूवीज ओल्ड मूवीज में आती है। तो पुरानी पिक्चर अगर आपने देखी है, कोई मूवी के अंदर कोई इलेक्शन चल रहा है तो उसके अंदर वो बहुत खास दिखाते एकदम। कोई एक गुंडा रहता, वो नेता बनने की कोशिश करते रहता, उसके 4-5 गुंडे रहते हैं ऐसे लंबे लंबे, हाँ ऐसे 4-5 लंबे लंबे उसके गुंडे रहते हैं। और 4-5 लंबे लंबे गुंडे क्या करते हैं, वोटिंग पुलिंग बूथ पे आता है, अरे बुढ़िया पीछे हो जाओ, वो सबको पीछे करके अंदर रूम में जाते हैं फटाफट, वो बैलेट बॉक्स लेकर आओ, बैलेट बॉक्स लेकर आते हैं, मारो थप्पा, फटाफट थप्पा, बोगस वोटिंग वो करते रहते हैं, बैलेट बॉक्स में अपनी वोटिंग डालते रहते हैं। सो दैट पर्टिकुलर वोटिंग इज बाय बैलेट। हमारे यहाँ पुराना जो इलेक्शन सिस्टम हुआ करता था दैट वाज टू बी बाय बैलेट, नाउ इट इज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो पहले जो ऐसे डब्बे थे उन सभी डब्बों को एक जगह पे रखा जाता था और वहां से निकाल के एक एक चिट्ठी निकाल के उसके अंदर से वोटिंग काउंटिंग और सब चीजें होती थी। जस्ट इमेजिन द टाइम इट यूज्ड टू टेक फॉर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ लोकसभा, क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख वोटिंग है, हमारे परभनी की लोकसभा क्षेत्र की वोटिंग 22 लाख है, 20 to 22 लाख रफ अराउंड गेस। तो उतनी वोटिंग काउंटिंग करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर उसमें से 10 लाख भी वोट कर 10 लाख पर्चियां निकालना और उसको काउंटिंग करना। लेकिन पहले तो ये था, आईटी रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में नहीं था बिफोर 91 बेसिकली। आफ्टर 91 एवरीथिंग रेवोल्यूशनाइज्ड एंड वी हैव आईटी। सो टुडे वी डोंट हैव दोस पोस्टल बैलेट्स एंड ऑल वोटिंग सिस्टम, वी हैव ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मोड, राइट? जहाँ पे चालू रहता है रोज किस्म, ईवीएम में घोल है, ईवीएम में ये है, ईवीएम में वो है, चलता रहता है, राइट? बट टू बी ऑनेस्ट आर पर्टिकुलर ईवीएम सिस्टम और द इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम इज वेरी इंडिपेंडेंट एंड फेयर। अगर ऐसा होता तो फिर मोदी जी जब से चुन के आज डेट तक कभी बीजेपी छोड़ के कोई पार्टी चुन के नहीं आती। अगर ईवीएम में पूरा घोटाला होता तो ना वो राजस्थान में आती, ना वो एक टाइम के लिए मध्य प्रदेश में आती, वो आ ही नहीं सकते थे हर जगह पे, राइट? सो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स वगैरह कोई सेंस नहीं बनता इन सब चीजों का। सो वोटिंग बाय बैलेट, वोटिंग बाय बैलेट में क्या है, आपको जो अपना वोटिंग है वोट कास्ट करना है और बैलेट बॉक्स रहेगा उसमें आपका वोट डालना है। मैं बोल दूंगा चलो भाई यस नो जो है अपना अपना वोटिंग लिख दो और वोटिंग इस बैलेट बॉक्स से डब्बा है, डब्बे के अंदर अपना वोट कास्ट कर दो। बाद में फिर हम बैलेट बॉक्स खोलेंगे, सभी चिट्ठियों को देखेंगे, वोटिंग पढ़ेंगे, फेवर और अगेंस्ट में जो मेजोरिटी रहेगा उसके हिसाब से रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। इसे हम कहते हैं वोटिंग बाय बैलेट, वी कॉल इट एज वोटिंग बाय बैलेट। अंडर दिस मेथड the record to vote ballot papers are distributed to every member and they deposit in the ballot box. The votings are counted and the result is declared. This method maintains secrecy in voting. अब मान लो कोई पॉइंट है, कोई मुद्दा है, कोई एक रेजोल्यूशन है जिस रेजोल्यूशन पे प्रथम और आनंद की नहीं बन रही। अभी दोनों जिग्गे है, ओ आनंद भैया प्रथम भैया बहुत जिग्गी जिग्गी बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? एंड दे बोथ हैव प्रॉमिस्ड कि जिंदगी में कोई भी ऐसा मुकाम आया तो भी हम एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं खड़े रहेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, हम साथ साथ है ना, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है। इन दोनों ने निर्णय लेके हम साथ रहेंगे और जिंदगी में हर मुकाम में सामने रहेंगे, कभी कोई भी मुद्दा है फिर भी हम आमने सामने नहीं रहेंगे। But let's say on a particular resolution of expansion,
their thinking is contradicting. Their thinking is contradicting. Anand is in favor of yes and Pratham is in favor of no for the expansion decision. But अब इन दोनों के मन में दुख दुख कि मैं यस बोलूंगा नो बोलूंगा, हम साथ साथ का जो हमारा जो निर्णय था वो तो नहीं रहेगा. फिर हम दोनों में यहाँ से छोटे छोटे चीजों को लेकर अनबन शुरू हो जाएगी. अगर शो ऑफ हैंड हो तो क्लियरली दिख जाएगा कौन किधर वोट कर रहा है, तो वॉइस हो तो समझ में आ जाएगा, ग्रुप हो तो भी समझ में आ जाएगा. लेकिन पोस्टल बैलेट है तो इसको अपना पोस्टल बैलेट छुपाना है और उस बैलेट में ले जाकर डालना है. उसके ऊपर क्या प्रथम मात्रा नाम नहीं होता, कुछ नहीं होता. तो आनंद को समझ में आएगा कि इसने क्या वोट डाला है, ना इसको समझ में आएगा इसको क्या वोट डाला. इसने भले ही नो डाला, आनंद को बोलते हाँ भाई मैंने भी यस ही डाला है. So what is happening? There is secrecy being maintained while voting in case of ballot, which can't be done in case of group voting or by voice voting or show of hand. Show of hand में तो clear सबको दिख जाएगा कौन साथ है कौन against है. Yes or no? So secrecy can be maintained. Secret, top secret. Secrecy can be maintained when it comes to ballot voting. Is this okay and fine? Yes. Next point, voting electronically. अब चिंता मत करो, यहाँ पे कोई टाइमिंग का बंधन नहीं है. सर टाइम अप, अब अपना कितने देर भी चल सकता है, मैं 10 घंटे भी नॉन स्टॉप पढ़ा सकता हूँ, तो अभी चलने देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो. सर टाइम अप हो गया, वो वाली चिंता मिट गई सारी. ऑनलाइन है, वो अटक रहा है, कर रहा है, अब सब ऑफलाइन में ही रिकॉर्ड होता रहेगा, बाद में ऑनलाइन फॉर्मेट में आता रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली. ईवीएम मशीन जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, जहां सारा वोटिंग हम कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली. अभी आप लोग तो अंडर 18 हो, कोई है क्या अबव 18 हो, कोई है क्या, कब से? हाँ 5 दिन में 18 हो रहा तुम? 4 दिन में. ओके. पार्टी आज की पार्टी तेरी तरफ से. सो भाई कब से जी अभी 4 दिन में 18 हो रहे, पर 18 कैसे हो रहे बेटा तुम? अच्छा बब्या के लिए, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स के लिए तुम 2 साल पीछे रहे क्या स्कूल में? पिताजी ने बोला अभी बेटा की 3 साल 4 साल अभी खेलने कूदने की उम्र है, बाद में देखेंगे. बेटा दो ही चीज हो सकती है, अगर तुम अभी 11th में 18 साल के, दो ही चीज हो सकती है. एक तो तुम तुम्हारे दोस्तों के लिए पीछे रहे हो, ऐसा कुछ आएगा नाही, या फिर एक ही हुआ है की बच्चा 5 साल के पप्पा बोल रहे आता आमचा लेकरू तर उगाच खेळतोय, पुढे बघू शाळेचा. आयदर यू हैव टेकन लेट एडमिशन्स, नॉट लेट एडमिशन, हाँ लेट एडमिशन राइट. आयदर यू हैव टेकन लेट एडमिशन्स और आयदर यू हैव ड्रॉप कर रहे तो लेट एडमिशन है. ठीक है, होता है नॉर्मली. सो नाउ इज 18. नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन, not only him, every one of you can vote. Next Lok Sabha is in 2024. By that time everyone will be 18. That time you will get to see how is the electronic voting done. I have done my electronic voting. Every election I do my voting, because voting is our right also and it is our duty also. In a democratic system, we are run by a democracy. Democracy can be empowered only by voting. लोगों के बारे में बात करना, चर्चा करना, इसको उसको नाम रखना आसान है. If you want to put a difference, go and vote. राइट. सो आगे जब भी आपको वोटिंग का पावर या राइट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 18 नंबर होने के बाद आ जाएगा, उसके बाद जो है कभी जिंदगी में कभी कोई वोटिंग मिस मत करना. राइट. सो जब वोटिंग होती है लोकसभा की, अब सारा ईवीएम के द्वारा होता है, सब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है. आपको जाना है, इलेक्ट्रॉनिक का जो मशीन होता है, ऐसा पूरा उसमें पैनल आता है जिसके ऊपर अलग अलग नंबर उम्मीदवार उसका चिन्ह दिया होता है. आपको सिर्फ जाना है, वहां बटन प्रेस करना, आपको वोट कास्ट हो जाएगा. तो फिर पूरा वो जो है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन में पूरा काउंट हो जाता है. और व्हाट दे डू, सभी जितने भी बूथ है, उन सभी बूथ के जितना भी डिजिटल रिकॉर्ड है उसको लाकर एक जगह पे रखते हैं. उन सभी रिकॉर्ड्स को सर्वर से कनेक्ट करते हैं, एंटर करके 2-4 उसमें कुछ सिस्टम में कुछ फंक्शन रन करते हैं और इमीडिएटली 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर तो रिजल्ट आ जाता है 20 लाख लोगों का वोटिंग का. सो दिस इज न्यू सिस्टम विच इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. राइट. सो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली. The central government will prescribe certain companies having compulsory electronic voting in general meeting. Members may exercise his right to vote by electronic means. And voting by electronic means is not compulsory on every company. Let's say Reliance जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ऐसे कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट कंपलसरी कर सकती है कि आप जैसी बड़ी कंपनी है, आप जरा प्लीज जरा जो वोटिंग है इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही लीजिए. राइट. सो इफ इट इज गाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वोटिंग हैज टू बी डन इलेक्ट्रॉनिकली. चलिए नेक्स्ट मुद्दा क्या है, अगला पॉइंट क्या है, voting by postal ballot. The central government may prescribe certain companies for having voting by postal ballot. Ballot papers are sent by post to members. Postal ballot. See,
आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पोस्टल वोटिंग भी होती है। पोस्टल वोटिंग होती है। मेरे मित्र है अर्जुन सामाले करके, ही लॉस्ट ड्यू टू पोस्टल वोटिंग। वो सिर्फ एक वोट से गिरे थे लास्ट परभनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में। ही लॉस्ट बाय 1 वोट, सिंगल वोट, and this voting was due to postal ballot. So what we have in the fundamental systems, if a government employee, notice मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ समझने की कोशिश करो, if a government employee being a resident of a particular city or town is transferred to some other place on his duty, government duty, he has a right to vote by postal ballot. He has a right to vote by postal ballot. So जब कभी भी मान लो जब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन रहा होगा और उनका वार्ड लेट से वो रायगढ़ कॉर्नर का वो सारा एरिया है, तो उस एरिया में जितने भी रेसिडेंट लोग हैं उनमें से जितने सरकारी कर्मचारी हैं जो एल्सवेयर किसी शहर में शिफ्टेड है, दे हैव अ राइट टू वोट बाय पोस्टल बैलेट। यानी उनका बैलेट पेपर जो है वो बाय पोस्ट वो पोस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ जो अगेंस्ट था उसको कुछ 232 कुछ वोट्स आए थे पोस्टल बैलेट से और इन्हें आए थे 231। तो पोस्टल बैलेट के काउंट से 1 या 2 वोट से वो गिर गए। तो यहाँ पे जो मेंबर है या जो वोटर है वो अपना राइट कैसे एक्सरसाइज कर रहा है? इज इट कमिंग इन फिजिकल? नो, ही इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू वोट बाय पोस्ट। तो वो क्या करते हैं, उनके पास पोस्टल के द्वारा जो भी है आ जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर अपना वोट असेंड करते हैं और बाय पोस्ट अपना वोटिंग वो भेज देते हैं। तो ये जो सारे वोट्स होते हैं ये पोस्टल बैलेट के वोटिंग के अंदर काउंट किए जाते हैं, राइट? इसे हम कहते हैं वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? जैसे कुछ पूछना है इस बारे में? तो इसके अंदर यह अधिकार बाय पोस्ट का होता है। नॉर्मली कंपनीज में हम पोस्टल बैलेट नहीं देखते क्योंकि कंपनी का नियम ही है कि मेंबर जो है मीटिंग में स्टार्ट से लेकर एंड तक होना चाहिए। हम वोटिंग के टाइप्स देख रहे हैं इसलिए वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट हम देख रहे हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट ही नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट है, दैट इज वोटिंग बाय प्रॉक्सी। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वोटिंग बाय प्रॉक्सी। लेट्स से कौन था हमारा एग्जांपल में? गौरव हमारा प्रेजेंट नहीं था। गौरव हमारा प्रेजेंट, बहुत ध्यान दे रहे क्लास में, टाया राउंड ऑफ अप्लॉज। नाइस, आई लाइक इट, ऐसे ध्यान दो, राइट? सो हमारा प्रॉक्सी कौन था एग्जांपल में? सागर। गौरव एब्सेंट है, गोवा में एंजॉय कर रहा है, 31st मना रहा है, तो उसकी जगह पे उसने प्रॉक्सी अपॉइंट किया था सागर। सागर आकर उसके बिहाफ पे वोटिंग कर रहा है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट नहीं है। वोटिंग बाय कंपनी एक्ट में कहीं पर भी वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट का प्रोविजन नहीं है। इट हैज टू बी आइदर बाय द मेंबर हिमसेल्फ इन द मीटिंग और आइदर बाय द प्रॉक्सी हु इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ द मेंबर हु इज एब्सेंट, because proxy has a right to vote on the behalf of the member who is representing. Sagar has a right to vote in the meeting if Gaurav is not present. Is it okay? चलिए नेक्स्ट, वोटिंग बाय पोल। अगला पॉइंट है वोटिंग बाय पोल। अगली बात है वोटिंग बाय पोल। अब पोल का वोटिंग कैसे लेना है? कौन बनेगा करोड़पति? देखो आपके पास बहुत सारा लाइफ लाइन है, 50-50 फोन अ फ्रेंड और ऑडियंस पोल, क्या लेंगे बताइए? कृष्णा जी, सर मैं ऑडियंस पोल लूंगा। अच्छा ऑडियंस, कृष्णा जी आपकी मदद चाहते हैं, ऑडियंस पोल शुरू किया जाए। तो दे आर गिवन अ टाइम, सबके पास वो मशीन होता है, वो बजे म्यूजिक आती रहती है, कौन बनेगा करोड़पति में। और जैसे टाइमिंग खत्म हो जाता है, इमीडिएटली दे शो अप अ पोल, इमीडिएटली दे शो अप अ पोल, दैट इज वोटिंग बाय पोल। दैट इज जस्ट अ फॉर्मर एग्जांपल ऑफ वोटिंग बाय पोल। याद आया? देखे कौन बनेगा करोड़पति? एक एपिसोड देखा है क्या? नहीं देखे तो देखा करो, जनरल नॉलेज बढ़ेगा। कौन है प्रधानमंत्री वाला? कौन था अपना? हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज वगैरह भी बढ़ेगा, थोड़ा सा देखा करो कौन बनेगा करोड़पति, अच्छी चीजें देखा करो। नहीं तो आपने क्या, वो आजकल नई चीजों में इंटरेस्ट है। कौन सा गाना है हनी सिंह का नया है वाला, फर्स्ट किस? क्या गाने रे, राइट? हमारी जनरेशन इधर जा रही है। यूट्यूब पे देखो सारे शुरुआत से एपिसोड्स है, तो इसमें ऐसी चीजें देखोगे तो जनरल नॉलेज बढ़ेगा। क्या देखना नहीं देखना ये भी आपको समझना चाहिए। सर बहुत ज्ञान बांटते हैं, क्या करें, आदत है, राइट? सो वोटिंग बाय पोल। सो जो ऑडियंस पोल है, ऑडियंस पोल जो है, दैट इज जस्ट अ रफ एग्जांपल ऑफ वोटिंग बाय पोल, राइट? पोल कैन बी डिमांडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बाय शो ऑफ हैंड्स। अंडर दिस मेथड each member can vote in the proportion to the number of shares held by him. Polling papers are given to the members and proxies for recording their votes. The result of the poll is final and not to be challenged. Now understand, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है।
कैसा डिफर कर रहा है उस वाले केबीसी से? पोल कैन बी डिमांडेड, पोल कैन बी डिमांडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय शो ऑफ हैंड्स। अब हमारी संख्या में बॉयज की संख्या ज्यादा है, गर्ल्स की संख्या कम है। शो ऑफ हैंड्स में बॉयज का निर्णय पक्का हो चुका है, गर्ल्स का शो ऑफ हैंड कम है। लेकिन शो ऑफ हैंड होने के बाद भी हम पोल लेना है ऐसा डिमांड मेंबर्स कर सकते हैं। गर्ल्स कैन से नहीं नहीं सर आप एक और बार पोल लो, शो ऑफ हैंड्स में जो निर्णय है वो ठीक है लेकिन फिर से आप पोल लो। सो पोल के अंदर क्या करेंगे, अंडर दिस ईच मेंबर कैन वोट इन द प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। बाय शो ऑफ हैंड्स अगर हम देखें तो वोटिंग किसकी ज्यादा है? बॉयज की। वोटिंग ज्यादा किसकी है? बॉयज की। शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग किसकी कम है? गर्ल्स की। लेट्स से कि गर्ल्स का शेयर होल्डिंग कंपनी में 60% है। कितना है? 60%। बॉयज का 40% है। वोटिंग पावर किसके पास ज्यादा है? कंट्रोल किसके पास ज्यादा है? गर्ल्स क्या बोलेंगे? चेयरमैन साहब वी हैव ऑब्जेक्शन, लेट्स हैव अ वोट बाय पोल। So whenever we have a vote by poll after showing of hands, after the result is counted, the voting is done by show of hands, we might have a vote by poll. Under the vote of poll, the voting will be done as per the shareholding in the company. Girls की shareholding कितनी है? 60%. So as per the shareholding pattern, the voting of yes will be 60%. As per shareholding pattern, what would be the boys voting? It would be 40%. So earlier decision of show of hands will be scrapped and girls voting by poll will win and it cannot be challenged by boys कि हमारा show of hands में voting ज्यादा था। Are you okay? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी हम show of hands का जो voting है उसको क्रॉस कर रहे हैं। गर्ल्स को मालूम है हमारे पास शेयरिंग कितनी है, हमारी शेयर होल्डिंग कितनी है कंपनी में? 60%। एंड यू ऑल नो कंपनी में जब 50% से ज्यादा वोटिंग किसी के पास होता है तो पूरा अल्टीमेटली बिजनेस उसी के कंट्रोल में होता है। इसका एग्जांपल क्या है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मोर देन 51% शेयर्स इन द कंपनी, तो अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल अपना रखता है, आया ना? इट होल्ड्स द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द न्यू सिस्टम, हाँ या ना? राइट। सो दिस इज हाउ इट इज टू बी अंडरस्टूड। अब पोल के अंदर क्या किया हमने? वोटिंग बाय पोल के अंदर जो शो ऑफ हैंड से जो रिजल्ट आया था उसको हमने चैलेंज किया है, रीवोटिंग करवाई है बाय शेयर होल्डिंग। रीवोटिंग के अंदर गर्ल्स की है 60%, बॉय की है 40%। शो ऑफ हैंड्स में बॉयज जीते थे, नो डिसीजन फाइनल हुआ। लेकिन पोल में वापस से जब शेयर होल्डिंग के हिसाब से हुआ तो वोटिंग 60% किसकी आई? यस की। 40% किसकी आई? नो की। सो अर्लियर डिसीजन विच इज टेकन बाय शो ऑफ हैंड्स विल बी स्क्रैप्ड एंड द फाइनल डिसीजन which cannot be challenged will be as per the voting at the poll, which is 60% of girls and 40% of boys. So yes, सही रहेगा and the exam will be postponed. समझ में आया सबको? समझ में आएगा सबको? Yes or no? Right? So जो preceding show of hands का जो रिजल्ट था वो स्क्रैप हो जाएगा और पोलिंग के द्वारा जो कुछ भी आपका जो निर्णय है that will remain. Now there are certain legal provisions regarding voting by poll. वोटिंग बाय पोल का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ लीगल प्रोविजन कंपनीज एक्ट में दिखाए गए हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस वी हैव रिगार्डिंग वोटिंग बाय पोल? जैसे पहला पॉइंट है द चेयरमैन कैन डिमांड द पोल। हु कैन डिमांड पोल? चेयरमैन। हु हैज द अथॉरिटी? चेयरमैन हैज द अथॉरिटी। बीइंग अ चेयरमैन, चेयरमैन हैज द अथॉरिटी टू डिमांड द पोल। शो ऑफ हैंड से मुझे दिख रहा है बॉयज की मेजोरिटी ज्यादा है, गर्ल्स की कम है, लेकिन मुझे लगता है इनकी शेयर होल्डिंग ज्यादा है, मुझे पता है। सो आई कैन डिमांड अ वोटिंग बाय poll. In case of a private company, poll can be demanded by one member where not more than 7 members are present and by 2 members when more than 7 members are present. अब हमारे मीटिंग में 7 से ज्यादा लोग हैं तो कोई भी गर्ल्स में से 2 गर्ल्स उठ के बोल सकते हैं सर, चेयरमैन सर वी डिमांड अ पोल। मैं चेयरमैन हूं, चेयरमैन सर वी डिमांड अ पोल। Any 2 members if the number of members present are more than 7 can demand for poll. Is it okay? अगर 7 से कम है तो सिंगल मेंबर कैन डिमांड अ पोल। दिस इज इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। दिस इज इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी पोल कैन बी डिमांडेड एटलीस्ट बाय 5 मेंबर्स इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी। 5 members in person or by proxy. Let's say we all are members of a public company. Now we want to demand a poll. पोजीशन ऐसी है बाय शो ऑफ हैंड्स, गर्ल्स की संख्या कम है, बॉयज की संख्या ज्यादा है,
शेयर होल्डिंग गर्ल्स की ज्यादा है, इनकी शेयर होल्डिंग कम है। सो अब लेट से हमारी पूरी मीटिंग के अंदर हमारी गायत्री जो है बुल्डाना वाली वो एब्सेंट है। तो शी हैज अपॉइंटेड अ प्रॉक्सी हु इज किरण, जो उसके बिहाफ पे वोट करने वाले। किरण इज नॉट मेंबर ऑफ आवर कंपनी, किरण इज नॉट मेंबर ऑफ आवर कंपनी, शी इज रिप्रेजेंटिंग गायत्री, शी इज अ प्रॉक्सी। So it can be, poll can be demanded by at least 5 members present at the meeting, minimum of 5 members. So let's say स्नेहल, रिया, आपका श्रावणी और सुहास, ये 4 लोग तो रेडी हो गए और साथ में किरण, ये 5 लोग मिलकर मुझे रिक्वेस्ट कर रहे कि चेयरमैन सर शो ऑफ हैंड हो चुका है, बट वी आर डिमांडिंग अ pool, we are demanding a voting by pool, right? So whenever 5 persons in personal or along with the proxy demand a pool, there has to be a pool in a public company. समझ में आया? तो pool कौन डिमांड कर सकता है? चेयरमैन डिमांड कर सकता है खुद से। प्राइवेट कंपनी है तो 7 से कम लोग है तो एक मेंबर डिमांड कर सकता है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 से ज्यादा है तो कम से कम 2 लोग मिलकर डिमांड कर सकते हैं। अगर एक पब्लिक कंपनी है तो पोल डिमांड करने के लिए कितने लोगों की संख्या चाहिए? 5 लोगों की संख्या चाहिए, और उस 5 लोगों में प्रॉक्सी भी आ सकता है। तो ऐसे सिनारियो में आप पोल डिमांड कर सकते हो। मान लो अगर पब्लिक कंपनी है और पोल डिमांड करना है, सिर्फ 3 लोग बोल रहे हैं, लेट से जानवी, ईशा और हनीशा, ये 3 लोग बोल रहे हैं कि पोल लो, तो ये मिनिमम 5 स्ट्रेंथ है क्या? नहीं। तो ऐसे केस में पोलिंग नहीं होगी, ऐसे केस में पोलिंग नहीं होगी। मिनिमम कितनी संख्या चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए? 5 मेंबर की। It can be demanded by member or members present in person or by proxy holding by 1/10 of voting power. ये नंबर ऑफ पर्संस के हिसाब से हो गया। पोल का डिमांड बाय द शेयर होल्डिंग भी होता है। अब ये 60% वोटिंग किसकी है? गर्ल्स की। 40% वोटिंग किसकी है? बॉयज की। अब इतने 60% में इशिता के पास, अकेली के पास 10% वोटिंग है कंपनी का। कितना? 10%। 1/10 ऑफ कंपनी कितना होता है? 10%। इसका होल्डिंग कितना है कंपनी में? लेट्स से 11%। कितना है कंपनी में? 11%। शी अलोन कैन डिमांड अ पोल, शी डजंट रिक्वायर 5 पीपल। सो आइदर यू डिमांड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स और आइदर यू डिमांड बाय योर शेयर होल्डिंग। और शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 1/10। 1/10, 100 का 1/10 कितना होता है? 10%। सो अगर इशिता की होल्डिंग 11% है, इशिता अकेले ही पोल का डिमांड कर सकती है। इज इट ओके? इज इट ओके? नेक्स्ट, पोल मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 48 आवर ऑफ इट्स डिमांड। जहां पोल आपने डिमांड किया उसी के 48 आवर्स के अंदर पोलिंग के द्वारा वोटिंग हो जानी चाहिए। द डिसीजन टेकन बाय पोल इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज इवन इफ इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द डिसीजन विच इज टेकन बाय शो ऑफ हैंड्स। अभी आप लोगों का शो ऑफ हैंड का डिसीजन बॉयज के फेवर में था, पोल का डिसीजन गर्ल्स के फेवर में है। फाइनल क्या रहेगा? अबाइडिंग ऑन ऑल, इट विल बी डिसीजन विच इज टेकन बाय पोल, दिस इज इन फेवर ऑफ गर्ल्स। इज इट ओके? राइट? The demand for pool can be withdrawn any time by a person who demanded it. Let's say इशिता ने डिमांड किया, बात उछल करने दो, जाने दो, जो है वैसे चलने दो। Immediately she withdrew her demand by poll, so poll नहीं होगा। और ये विड्रॉल कब तक हो सकता है? पोल होने से पहले। पोल होने के बाद सर मैंने पोल विड्रॉ कर दी, तो ऐसा नहीं चलता। If she has demanded poll, that poll can be withdrawn before the poll is conducted. एक बार पोल हो गया फिर बाद में विड्रॉल नहीं जमेगा। तो समझ लो जो 5 लोग मिलकर बोल रहे कि डिमांड कर रहे पोल की, वो पोल होने से पहले जो है डिमांड कर सकते कि हमारा पोल अब मत लीजिए। इज दिस ओके एंड फाइन? समझ में आया? सो दीज आर ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग वोटिंग बाय पोल। हाँ हाँ हाँ। पोल एक ही बार होगा, डबल डबल नहीं होगा, एक ही बार वोटिंग होगा, एक ही बार पोल होगा। तो आपको जो भी कन्विंस करना है उस पोलिंग के वोटिंग के टाइम भी करवाना है। वोटिंग जो पोलिंग के बाहर आएगी वही फाइनल रहेगा। हाँ, वोटिंग चालू होते टाइम नहीं, चालू होने से पहले, पूल का वोटिंग होने से पहले। यस, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? हाँ माधव, एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, मेरिट्स। मेरिट्स डिमेरिट्स खत्म करेंगे तो वोटिंग का पॉइंट अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट है मेरिट्स। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इज मेरिट्स। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ वोटिंग बाय पोल? प्रॉक्सीज आर अलाउड टू वोट बिकॉज अ प्रॉक्सी अपॉइंटेड इन अ मीटिंग हैज टू बी हाताची घडी तोंडावर बोट। क्या? सुन तो मेरी बात, मेरा पॉइंट कंप्लीट होने दे।
प्रॉक्सी कैसा होता है, हाथाची घडी तोंडावर वोट. शो ऑफ हैंड के अंदर वो वोटिंग नहीं कर सकता. प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड के अंदर वोटिंग नहीं कर सकता. सिर्फ पोल के अंदर ही प्रॉक्सी को वोटिंग करने का अधिकार है. इफ द वोटिंग इज बाय पोल देन एंड देन ओनली प्रॉक्सी कैन वोट. क्योंकि वोटिंग बाय पोल का अधिकार उसको है, इसीलिए वो डिमांड कर सकता है बेटा. शो ऑफ हैंड्स के लिए वो डिमांड नहीं कर सकता, लेकिन पोल के लिए वो डिमांड कर सकता है, क्योंकि पोल में वोट करने का अधिकार प्रॉक्सी को दिया गया है. शो ऑफ हैंड के अंदर अधिकार है क्या? नहीं. हाथाची घडी तोंडावर वोट. चुपचाप पोल में जो डालना है वोटिंग डाल लो, अगर पोलिंग के द्वारा अगर वोटिंग ली जा रही है. शो ऑफ हैंड्स चिल्लाना करना अलाउड नहीं है. अगर तुम प्रॉक्सी हो, वोटिंग बाय वॉइस हो, तो चुपचाप बैठो. चिल्लाने की इजाजत तुमको यहां पर नहीं है. बात समझ में आई? अगर आप प्रॉक्सी है, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स है, तो आपका हाथ ऊपर करना भी अलाउड नहीं है. अगर वोटिंग बाय पोल है तो ही प्रॉक्सी जो है वो वोट कर सकता है. सो वोटिंग बाय पोल के एडवांटेजेस है, मेरिट्स देख रहे हैं. वोटिंग बाय पोल के मेरिट्स क्या है? जो प्रॉक्सी मेंबर के बिहाफ पे आया है वो वोट कर सकता है. पहला मुद्दा. दूसरा मुद्दा, सेक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड अंडर दिस मेथड. जैसे राम लखन आमने सामने नहीं आना चाहते, तो पोल के द्वारा अगर वो वोटिंग करेंगे तो ना इसको इसका निर्णय पता चलेगा, ना इसको इसका निर्णय पता चलेगा. यस और नो? इट इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ वोटिंग. इट इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ वोटिंग. साइंटिफिक मेथड इसे माना जाता है. शेयर होल्डर्स कैन वोट इन द प्रोपोर्शंस ऑफ द शेयर हेल्ड. क्योंकि शो ऑफ हैंड्स है तो उसको चैलेंज करके पोल करो, पोल का डिमांड करो, बाद में अपने शेयर होल्डिंग के हिसाब से आप वोट कर सकते हो. अगला पॉइंट, डीमेरिट्स. और ये सही भी है ना, जिसकी जैसी शेयर होल्डिंग हो वैसा वोटिंग हो. लेट से पूरे बॉयज की मिलकर 1% शेयर होल्डिंग है कंपनी में, और बोलते हमारा सुनो हमारा सुनो हमारा सुनो. सही होगा क्या? नहीं. 99 शेयर होल्डिंग किसकी है? गर्ल्स की है. चलनी किसकी चाहिए बाय नियम? शो ऑफ हैंड्स अगर ये चला रहे तो ये सही होगा क्या? विल इट बी फेयर? नो. गेम हैज टू बी ऑलवेज फेयर, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, डीमेरिट्स. अगला मुद्दा क्या है? डीमेरिट्स. Next point is regarding demerits of vote by poll. Under this method, one share one vote principle is followed. Hence, this method is criticized as capitalistic method of voting. जैसे मैंने कहा कि बॉयज की वोटिंग 1% है, इनकी संख्या ज्यादा है, और तुम्हारी संख्या कम है, तुम्हारे पास 99% वोटिंग है. चला कौन रहा है? तुम लोग चला रहे हो. तो माइनॉरिटी की आवाज दबाई जा रही है. माइनॉरिटी की आवाज दबाई जा रही है. माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है. ये वर्ड तो सुना ही होगा ना. माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है, लेकिन माइनॉरिटी की आवाज मेजोरिटी क्या कर रही है? दबाने की कोशिश कर रही है. इजीली दबा सकते हैं. वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में जो मेजोरिटी रहेगा वो जीतेगा. शेयर होल्डिंग में ऐसे चलेगा क्या? नहीं. 1% वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे. इनका है क्या नहीं क्या, कुछ वोट दिया क्या नहीं दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 99% वाले अपने हिसाब से चलाएंगे. तो इनका आवाज दबाया जा सकता है. इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है एज अ कैपिटलिस्टिक मेथड ऑफ वोटिंग. इज इट ओके? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया. सेकंड पॉइंट, दिस मेथड इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड. थोड़ा मेथड डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लिकेटेड भी है. शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग लेने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 मिनट. बाद में पोस्टल बैलेट रखो, पोस्टिंग पे वोटिंग करो, वो लाओ वो डालो, फिर एक एक निकालो, एक एक गिनो, फिर उसकी काउंटिंग करो, फिर निर्णय दो. डू यू थिंक इट विल टेक टाइम? इट विल रिक्वायर मोर कॉस्ट? यस और नो? सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज कॉस्टलियर. हेंस नॉर्मली पोस्टल बैलेट को प्रेफर नहीं. और वो पुराने आउटडेट के जमाने आप सब इलेक्ट्रॉनिक ही हो रहा है, राइट? या फिर इलेक्ट्रॉनिक नहीं लिया तो सीधा सीधा वो शो ऑफ हैंड करते और खत्म करते हैं. सो दीज आर ऑल द डिफरेंट मेथड्स ऑन वोटिंग इन अ मीटिंग. एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज वोटिंग बाय पोल, हाउ कैन वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स बी चैलेंज्ड बाय वोटिंग ऑफ पोल, when and how and who can demand the vote by poll even after decision is taken by voting of hands, what are the provisions regarding voting by poll. Next we saw what are the merits of vote by poll. Next we saw what are the demerits by voting of poll, and here we complete the discussion for today's secretarial practice first lecture on the virtual record. So इसके आगे का जो पार्ट है resolution और सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में, right? So that's all for today. See you all tomorrow.